ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੈਚ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1000 ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਚੌਕਾ ਹੀ, ਲੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦੇ ਛੱਕਾ ਹੀ, ਲੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦੇ ਆਊਟ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਨਾ ले ਹੋਇਆ। महन मुफ्ती मुबशर साहब ने ਮੁਫਤੀ दबाव ਸਾਹਿਬ ना लो ਦੱਸਣਗੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ मुफ्ती ਨਾ साहब ना लो। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब की हाल है, ठीक ठाक हो, खैरियत है सर जी जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वालेकुम सलाम राजा साहब माशाल्लाह। चलो जी, अज सानू भी शरफ हासिल हो गया लाइव मुफ्ती साहब नु सलाम करन दा जी। हाँ जी माशाल्लाह मैं जी, ते माशाल्लाह। बस टिकटाक ते बहुत घट आ जा रहे हैं जी। वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम। ते ऐसे चौधरी साहब दी बराड़ लगी है, मैं कहा चलो दुआ सलामी हो जाए। हाँ जी, ते सब दोस्तां नूं ईद मुबारक होए। खैर मुबारक जी। मुबारक तुसां नूं ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक जी खैर। अच्छा जी, की मौजू छड़िया जी, कोई थोड़ा दसो। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂ ਇਹ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਏ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂ ਇਹ ਛੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਗਾਡ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਨਾ ਜਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ WhatsApp ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ कह रहे ने वो ਰਾਏ मैनू कह रहे ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ठीक हो ਪੁੱਛੇ गया ਕਿ ते ਤੁਸੀਂ ए सवाल किन्ना ने कीता वे? ਇਹ ਮੈਂ सवाल ਕੀਤਾ किन्ना? ਜੀ, ਮੈਂ अच्छा ਕੀਤਾ ए वजूदे खुदा दा सवाल तुसां कीता है ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜੂਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਫਨ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਸਬੂਤ ਮੰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। जी मुफ्ती अच्छा जी। अच्छा चौधरी साहब, बात ये है कि
جب کسی بھی سوال کے اوپر جواب دیا جائے گا تو اس کا کوئی جواب دینے کے کچھ اصول ضابطے قاعدے ہیں. بالکل صحیح. دیکھا جاتا ہے سائل کو، دیکھا جاتا ہے کہ سائل کون سا ہے، سائل کی ٹھیک ہے. کیفیت دیکھی جاتی ہے، سائل کے معاملات دیکھ کے پھر مجیب جو ہوتا ہے جواب دینے والا وہ جواب دیتا ہے. اب دیکھیں کہ یہی سوال کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں، یہ سوال ایک مسلمان کا ہے تو جواب کوئی اور ہوگا. اگر کسی غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم کے اندر بھی کیٹاگری ہیں. آیا یہ کرسچن ہے تو اس کا جواب جناب دیا جائے گا اس کو بائبل کے اندر سے. اگر وہ یہودی ہے تو جواب دیا جائے گا تالمود سے. اگر جناب دیکھا جائے گا کہ ایسا سوال کرنے والا ہندو ہے تو اس کی جو مذہبی کتاب گیتا گرنتھ ہے اس سے جواب دیا جائے گا. اگر کوئی ملحد ہے جو کسی دین مذہب پہ یقین ہی نہیں رکھتا تو پھر جواب اس کو عقلی دلائل سے دیا جائے گا، کیونکہ وہ ٹھیک ہے ایتھے چلو. ہاں. تو اب یہ ہے کہ اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ سائل کون ہے، تو آپ نے کہا جی سائل میں ہوں. میں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کیا ملحد ہیں؟ ہاں جی. ہاں یہ بات ہوئی نا. یہ ایک طریقہ جی. کار ہے نا جی، تاکہ ایک سٹیٹس واضح طور پہ ایک سامنے آ جائے کہ سائل کا سٹیٹس کیا ہے، پھر مجیب جو ہے نا اس طریقے سے اس کو جواب دیتا ہے. اب دیکھیں ایک آپ ملحد ہیں تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اب آپ تو کسی چیز کو مانتے نہیں، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ جناب گیتا کو، گرنتھ کو، نہ رمائن کو، نہ ویدوں کو، نہ بائبل کو، تالمود کو، کوئی کتاب، کوئی دستور آپ کے پیش نظر نہیں. کیونکہ ملحد جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ صرف عقل کو بروئے کار لاتا ہے اور عقلی چیزوں کو مانتا ہے اور عقولات کے اوپر وہ یقین رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں چودھری صاحب کہ اس کائنات کا جب کوئی کریٹر نہیں ہے تو کیا یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ ہاں میں یہی سمجھتا ہوں. خود بخود چل رہی ہے. اچھا خود بخود چل رہی ہے تو کائنات کے اندر تو بڑی چیزیں ہیں. کسی اور دوست کا اچھا مفتی صاحب معافی چاہتا ہوں ایک بات. اچھا دوست اس طرح کریں سوری گو ہیڈ پلیز. نہیں کسی کو بلانے کی، کسی ایتھیسٹ کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی آپ چودھری صاحب خود آپ نے اعلان بھی کیا ہے. اب وہ یہ نہیں مجھے پتا کہ آپ نے انجانے میں کیا ہے یا جان بوجھ کے کیا ہے، اس کا مجھے تو نہیں پتا. حکم تو ظاہر کے اوپر جان بوجھ کے کیا ہے آپ تاکہ اس پہ بات ہو سکے اور میں بھی سمجھ سکوں. اگر میں خدا کو مانوں بالکل ٹھیک ہے تو پھر آپ کسی اور ایتھیسٹ کو نہ بلائیں، ہمارے سامنے آپ موجود ہیں نا تو بس بات کرتے ہیں ہم. جو سوال جواب ہم نے کسی اور ایتھیسٹ سے کرنے ہیں وہی سوال جواب ہم آپ سے کر لیتے ہیں. نہیں سارے سوال جو آپ مفتی صاحب کریں پر میری پوزیشن بھی سمجھے نا پہلے تھوڑی سی. جی میرا مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ اس بارے میں ابھی تحقیق شروع کی ہے، ہو سکتا ہے میرے پاس آپ کے بے شمار سوالوں کے میرے پاس علم ہی نہ ہو اور میں تکے سے جواب دوں گا تو دوستوں کا وقت ضائع کروں گا. تو بہتر ہے کہ کوئی ایسا میری بات پھر مجھے بولنے دیں.
फिर बेहतर मुझे है कि बोलने वो दें, ऐसा बंदा आ जाए मुझे जिसको बोलने दें। काफी इल्म हो, तो वो हो सकता है दोस्तों का वक्त जाया ना हो, लोगों को बेहतर इंफॉर्मेशन मिले। जी मुफ्ती जी साहब, मुझे बोलने दें। जी आप बोले। जो आपकी कैफियत है ना कि मैं अभी तहकीक कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ पक्का मुल्हिद बनने की, तो हाँ जी, दुनिया का कोई सा भी मुल्हिद आप उठा के देखेंगे वो उसकी यही कैफियत है। दुनिया ठीक का है। हर मुल्हिद, हमारी बड़ी मुल्हिदों से गुफ्तगू हुई है, किसी के पास भी कोई इल्म नहीं होता, बस मैं ना मानूं का उन्होंने लगाया होता है। तो ठीक है। कादियानियत एक चीज ऐसी है कि कादियानियत की जो इंतहा है ना वो इल्हादियत है, क्योंकि कादियानियत के अंदर जो रहता है वो बंदे को नीम मुर्दा कर देती हैं, उसके ईमान को भी वो ऐसा मुतजलजल कर देती हैं कि उसको फिर कोई दुनिया का कोई दीन मजहब उसको पसंद ही नहीं आता। वो कहता है कि मैं ला मजहबियत का अब कायल हूँ, मैं अब किसी मजहब में नहीं रहूंगा। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है हमारे लिए। अगर आपके जहन में ऐसे शकूक या शुबहात या आपकी आप कह रहे हैं मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ पक्का मुल्हिद होने की, तो चौधरी साहब ये तो आसान है, मुश्किल ही कोई नहीं। दुनिया का सबसे आसान काम है इनकार करना, सबसे आसान काम है, और इसका इसका ये इससे कोई मुश्किल ही नहीं होता, बस आराम से इनकार कर दो मैं नहीं मानता। भाई मुल्हिदीन क्या करते हैं, कादियानी क्या करते हैं, इनकार ही तो करते हैं, कहते हम नहीं मानते, करोड़ दलील दे लें नहीं मानेंगे। तो ये सबसे आसान काम है ना मानना, मैं नहीं मानता जी। हाँ अच्छा जी, अब अकली अब मुफ्ती साहब इस तरह नहीं मजा आएगा, मेरी बात सुने, आप तो दोस्त हैं मेरे। हम ऐसे करते हैं 2-2 मिनट बात करते हैं ताकि को थोड़ा सा आगे काम चले, अदरवाइज तो फिर आप बोलेंगे और मुझे सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। जी जी अब आप बोल रहे हैं तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं बोल लूंगा। अच्छा, ये जो 2 दोस्त आए हैं, 2 आइडिया हैं, इनमें से कोई दोस्त बात करना चाहता है 1-2 मिनट? ये 1-2 हमने दोस्त ऐड किए हैं, इनमें से किसी ने कोई बात करनी है? नहीं 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 नहीं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, बात नहीं कर सकते, आप बात करें, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक। अच्छा, ये एक और आईडी है, वो रेड कलर की, आपने बात करनी है? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, बात ये है, आपने हस्ती बारी ताला का वजूद के बारे में बात करनी है कि ये एविडेंस है खुदा के होने का, ठीक है ना जी? मुफ्ती साहब आगे आवाज आ रही है दोस्तों को मेरी? एक म्यूट किया हुआ है, आप जब मुझे इजाजत देंगे ना फिर मैं माइक ओपन करूंगा और बोलूंगा। हाँ जी, अगर हम इस बात पे शुरू हो जाएं कि जो कादियानी हैं वो मुल्हिद बनाते हैं सिर्फ, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा ख्याल में ठीक नहीं है। दुनिया में कई और भी मुल्हिद हैं जिनको पता ही नहीं है कि कादियानियत कहाँ पे है, कोई है भी कि नहीं है इस दुनिया में। तो ये सिर्फ एक कादियानियत को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बात कोई फायदा नहीं है। सवाल इतना सा है, सादा सा, कि हस्ती बारी ताला का खुदा है, उसके बारे में कोई एविडेंस आप दें, और वो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जी मुफ्ती साहब। अच्छा ये है कि मैं अब कुछ सवालात आपसे करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कायनात खुद खुद चल रही है, अज खुद चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान ने हमें बताया था, तो मुल्हिद तो कुरान को नहीं मानता, लेकिन हम चूंकि मुस्लिम हैं और ये हमारी मुसलमान किताब है तो हमने तो कुरान को ही मानना है ना, उसको ही फॉलो करना है। कुरान कहता है कि अपने ऊपर गौर करो, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, अपने ऊपर गौर करो तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। अब हम अपने ऊपर गौर कर लेते हैं, तो मुझे तख्लीक इंसानी के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है कि नर और मादा जब हम बिस्तर होते हैं तो हम गुफ्तगू वहाँ से शुरू करते हैं कि जब दोनों का मादा मनविया फर्ज के अंदर जमा होता है। फर्ज उस दाखिली रास्ते को कहते हैं कि जहाँ पर दखोल होता है,
मादा वहां पे जमा हुआ है, दोनों का, नर और मादा का। अब वहां से एक ट्यूब है, एक लंबी सी, वो जाती है एक मकान के अंदर जिसको रहमदानी कहते हैं। वो मादा की रहमदानी तक वो एक गली है, वो एक ट्यूब है, वो एक नाली है जो उस रास्ते की निशानदेही करती है। अब वहां पर जाकर वहां पे गेट लगा होता है, दरवाजा लगा होता है। अब वो गेट खुलता है और मखसूस तरीके से खुलता है। इसको डॉक्टर हज़रात जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी मौजूद है आज की दुनिया के अंदर। मुझे बात यहां से शुरू करनी है कि अगर आज खुद सब कुछ हो रहा है, चलो मान लेते हैं कि मादा निकालना मर्द का काम है, औरत का काम है, लेकिन वो तो गया था जाके फर्ज के अंदर जाके गिरा था, वहां से हजारों जरसूमें, मर्द के हजारों जरसूमें, औरत के, उनके अंदर एक एक जरसूमा आपस में मिलता है। ये मुलाकात खुद खुद कैसे हो गई? फिर दूसरा सवाल, ये सवाल नोट कर लें, ये बाद में जवाब दीजिएगा। फिर वो एक लंबी सी जो ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर वो चल के जा, अभी तो वो जान तो नहीं उसकी में पड़ी, अभी तो वो बेजान है। पहले उनकी मुलाकात हुई, फिर वो चल के वो दोनों गए हैं जनाब रहमदानी की तरफ। किसने बताया कि रहमदानी की तरफ जाना है? वो बाहर क्यों नहीं गिरा? वो जब इस्तंजा किया था वो जायल क्यों नहीं हुआ? वो गया क्यों है? उधर क्यों गया? वो नीचे नहीं गिरा, ऊपर चढ़ गया। ये है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, रहमदानी का तो दरवाजा से तीनों सवालों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप जब साबित करने की कोई दलील देंगे कि ये मुझे साबित हो रहा है, तो मेरी समझ में आया तो मैं समझूंगा यस बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर मेरी समझ में ना आएगा तो मैं कहूंगा सॉरी, मैं मुफ्ती साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। तो आप इन तीनों सवालों के बाद आगे क्या साबित करना चाहते हैं? जी सर, आपकी बारी है। अच्छा गुजारे ये है कि सवाल का जवाब आप नहीं देंगे तो ये तो वही बात हुई ना, मैं ना मानूं। मैंने तो पहले कहा था कि इल्हादियत और कादियानियत का सर चश्मा है, मैं ना मानूं। देखें मैं एक ना, वो मेरी बारी है, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें। जब मैं आपको कहूंगा ना जी अब आप बोल लें, फिर आप बोल लीजिएगा, तो वो फिर यही है कि वो फिर बात उलझ जाएगी। जब आपका पास वक्त था तो आपको ये बातें करनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं आपने की। तो अब आप इंतजार फरमाएं, जब आपका वक्त होगा तो आपने इन सवालों के जवाब देने हैं, नहीं तो मेरा सवाल उधर का उधर ही रहना है। जब तक ये सवाल के जवाब नहीं मुझे मिलेंगे तो मैं तो इधर ही रहूंगा ना, मैं तो अग्गा दौड़ पीछा जोड़ तो नहीं ना करूंगा। साबित हमने करना है वजूदे बारी तारा, साने बारी ताला, अल्लाह पाक का वजूद साबित हमने करना है। लेकिन उसके लिए अल्लाह ने हमें कायदा कुलिया दिया था कि अपने ऊपर गौर करो, अपने नफ्स के ऊपर गौर करो, तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। साबित हो जाएगा कि अल्लाह है, इस कायनात का कोई खालिक है, क्रिएटर है, इस कायनात का चलाने वाला, इस कारखाने कुदरत को चलाने वाली कोई जात है। ये खुद नहीं हो रही। सवाल आपका ये था, इतराज ये था कि भाई ये कायनात खुद चल रही है। मैं कह रहा हूं कि नहीं चल रही।
उसके लिए हमने आपसे 3 सवाल किए हैं, उनके जवाब दे देंगे तो साबित हो जाएगा कि कायनात खुद चल रही है या नहीं चल रही। बस पहला सवाल ये था कि मादा मनविया जब फर्ज के अंदर गिरे तो नर और मादा का जो जरसूमे है वो एक जगह पे जमा किसने कराए? वो खुद हुए? अगर खुद हुए तो 1000 जरसूमा था मादा मनविया, औरत की मादा मनविया में 1000 जरसूमा था नर के जरसूमे के अंदर। वो खुद सारे के सारे ही क्यों नहीं मिल गए? सबको मिलना चाहिए था, फिर सब भी आपस में मिल जाते तो 1000 बच्चा पैदा होना चाहिए था, हालांकि एक बच्चा पैदा हो रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पहला सवाल है ये, वो किसने उन दोनों को एक किया? कौन सी ताकत थी, कौन सी? ऐसा बताइए मुझे। इसको आप वक्त कहानी कह के, इसको स्टोरी कह के आप जान नहीं छुड़ा सकते। मुल्हिद को इनका जवाब देना पड़ेगा। अगला सवाल ये था पहला कि सवाल वहां पे पहले सवाल का जवाब सुन ले, फिर आप स्टेप बाय स्टेप मुफ्ती साहब चलते हैं, ठीक है? आपका ये फरमाना है कि वो एक क्यों नहीं मिला, ठीक है? एक क्यों मिला है, सारे क्यों नहीं मिल गए? तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? फिर मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। फिर देख लें, आप मुझे बता दिया करें कि भाई अब आप बोलें। अब आप बोलें, मैं हर बात के एंड पे कह दिया करूंगा कि अब आप बोलें। हाँ, ये तरीका है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो फरमा रहे हैं कि एक मिला हजारों क्यों नहीं मिले, इसका जवाब दें। ओके, मैं जवाब देता हूं, लेकिन आप एक मिलाने से साबित क्या करना चाहते हैं? जी अच्छा, गुजारिश ये है कि क्योंकि चौधरी साहब कह रहे थे कि आवाज़ डबल होती है तो मुझे बात करने का मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं माइक म्यूट कर देता हूँ। तो तरीकाकार असूल यही है कि हर फर्द जब बात करे तो आखिर में कह दे जी अब आप बात करें। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है जी, ठीक है। पहला सवाल ये है कि जब ये खुद सब कुछ हो रहा है, अभी तो मैंने यहां से तो बात शुरू की नहीं है कि वो मादा मनविया कैसे बना, किसने बनाया, उससे नहीं। मैं तो दरमियान से काम शुरू कर रहा हूं कि मादे निकल आए हैं, दोनों के निकल आए हैं। अभी इसके ऊपर भी बात नहीं कर रही कि वो मादा। अच्छा, एक छोटी सी मेरी बात सुन ले। सॉरी, आई एम सॉरी, आपकी बारी थी जी, सॉरी, गो अहेड। बात का वैसे मजा मुझे अब नहीं आएगा। नहीं, मैं सॉरी, मैं माजरत करता हूँ, वो मैंने अब नहीं बोलूंगा जी, आप बोले। जब आपको मौका मिले ना चौधरी साहब, जितनी मर्जी बात कर लिया करें, कोई मसला ही नहीं है। हम दोनों दोस्त आपस में बैठे हैं, बंदा खुली डुली बात कर सकता है, लेकिन कम से कम असूल ज़ाब्ते के तहत गुफ्तगू हो ना, तो सुनने देखने वालों को कोई मजा आएगा। अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, लोग यूट्यूब पर भी जाके सुनेंगे तो उनको मजा नहीं आएगा। फिर ये पहला सवाल है आजिज का, आप हैं मुनकिर खालिक के कि नहीं, खालिक को नहीं है। आप क्रिएटर के मुनकिर हैं, आप साने के मुनकिर हैं। मैं उसका जो है ना इकरार करने वाला हूं, उसको साबित करने वाला हूं, मैं मानने वाला हूं, मैं मुअमिन हूं, ईमान लाने वाला हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें, हमारे अल्लाह ने हमें कहा था कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि तुम अपने ऊपर गौर करो, अपने नफ्स के ऊपर गौर करो, तुम मुझे पालोगे। तो हमने यहां से बात शुरू की है कि देखे मादा मनविया निकला है, हजारों जरसूमे हैं। मैंने तो 1000 रखे हैं, वैसे लाखों की तादाद में होते हैं। जाके देखिए, रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि 1000 जरसूमा मर्द का है, 1000 जरसूमा औरत का है। पहला सवाल यह है कि वो हजारों के हजारों ही आपस में क्यों नहीं उन्होंने मुलाकात की। दूसरा ये था कि उनमें से सिर्फ एक ने मुलाकात की है। तो इसका जवाब नहीं आप दे रहे, ये खुद नहीं हुआ।
खुद बुद कैसे हो गया बताइए? उनको कोई टांगे लगी हैं? वो उनके अंदर क्या जान है? या मतलब वो कोई आपस में बातें करती हैं? या उन्होंने कोई ब्याह किया था? या मतलब ये कि कोई उनको अमोर कंट्रोल लगा हुआ है? या कोई उनके अंदर कोई सिम डाली, या कोई 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 बताए तो सही ना, खुद बुद कैसे हो गया ये बताएं, इसका जवाब देना है जनाब। जब जवाब देंगे तो बात आगे चलेगी। अब आप बोल लें। जी मुफ्ती साहब, मैंने अर्ज किया है पहले भी कि आप जो एक, पहली तो बात यह है कि जब आप हस्ती बारा ताला का सबूत देने के लिए ये है कि आप अपने आप पे गौर करें, तो सबसे पहले आप जरसूमे पे क्यों पहुंच गए हैं? बाकी जो वजूद है उसमें कोई चीज नहीं है गौर करने के लिए। जी आपकी बारी है। यार चौधरी साहब, फिर तो कोई बात तो ना हुई। ये तो वही मैं ना मानू, मैंने तो पहले कह दिया था मैं ना मानू। ये पहली सीढ़ी होती है एक मुल्हिद की, एक कादियानी की। वो कहते मैं नहीं मानता। ये तो वही बात मैं सवाल किए जा रहा हूँ। 3-4 टर्नें हो चुकी हैं, अभी तक आपने कोई उसका रत्ती बराबर कोई जवाब नहीं दिया। आप उल्टा मेरे ऊपर सवाल कायम कर रहे हैं। नहीं जी तुम बताओ क्यों। चलो ये कौन थी? ये कोई नहीं, आप बात कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी बात करिएगा। मेरी ये आखिरी बात थी। मुफ्ती साहब, मैंने ये पूछा है कि जब अल्लाह का हुक्म है कि मुझे पाने के लिए आप अपने ऊपर गौर करें, आप मुझे पालेंगे, तो आप अपने ऊपर गौर करने के लिए सबसे पहले जरसूमे पे पहुंच गए। बाकी इंसान का हर हिस्सा जो है वो गौर करने वाला नहीं था, सबसे जरूरी यही हिस्सा था। ये मेरा सवाल है कि क्या या हस्ती बारी ताला ने जरसूमे के बारे में खास मेंशन किया हुआ है कि इस पे गौर करें? जी मुफ्ती साहब। देखें, अपने ऊपर गौर करने की इब्तिदा जो होती है वो जरसूमे से ही हो रही है ना भाई। तख्लीक इंसानी की इब्तिदा और जो मबदा है वो यही है, जरसूमा ही तो है। इसलिए मैंने यहां से बात शुरू की है। मैंने सर, मुंह, नाक, कान, आंख, टांगे से बात नहीं शुरू की, क्योंकि ये बात की बातें हैं। इस पर भी बात करेंगे लेकिन बाद में। अभी तो इब्तिदा से बात शुरू कर रहे हैं कि इंसान की तख्लीकात के मराहल कहां से शुरू हुए। अभी तो बहुत बड़े सवालात हैं। अभी तो सवालों की एक लंबी कतार है, पूरा इंसान बनने तक, बाहर निकलने तक हजारों सवालात है मेरे एक मुल्हिद से। अभी तो पहले सवाल के अंदर ही आपकी जब निकल गई है। हाँ जी, माजरत के साथ मैं मुल्हिदों को मुखातब कर रहा हूँ, आपको नहीं। जी बोलें आप। चौधरी भाई, जब आपको ये मालूम नहीं है कि वो जरसूमा जो है वो किस तरह इंसान बना है, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता, फिर मुबश्शिर साहब बताएंगे कि वो कैसे बना है, तो अल्लाह साबित हो जाएगा। जी अच्छा, अगर आप माइंड ना करें, आप भी आए हैं, हमें आपका नहीं पता, तो भले हो सकता है आपसे कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। आप बिलीवर हैं, नॉन बिलीवर हैं, ताकि नॉन बिलीवर की साइड हो या बिलीवर की पता चले थोड़ा सा। जी, मुझे असल में पता कुछ नहीं है, खुदा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। अभी जो मुबश्शिर साहब कह रहे हैं कि वो जरसूमा जो है उसके प्रोसेस के बाद वो इंसान कैसे बना, ये दरवाजे नहीं। किसने खोले, ये मुझे भी पता नहीं है। तो मुफ्ती साहब बताएं किसने खोले। नहीं, मैं वही अर्ज करता हूँ आपसे थोड़ा सा मजीद। एक होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, एक होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी है लेकिन मुझे पता नहीं है। आप उस पोजीशन में हैं? हाँ नहीं, मुझे देखे ना, बात यह है कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं है, खुदा नहीं है। मुझे तो ये पता है कि चूंकि मैं उसका अमल दखल बिल्कुल सिरे से देखता ही नहीं हूँ इस दुनिया में, तो इसलिए मैं तो ये कह सकता हूँ मुझे पता नहीं है। तो अगर कोई अच्छा, कहता है कि वो ठीक है। है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो किस तरह है। ये अभी जो जरसूमा की बात कर रहे हैं मुबश्शिर साहब शाह साहब, जी तो यही बताएंगे ना कि वो जरसूमा अल्लाह ने कैसे उधर किया है, कैसे वो लंबी लाइन से और फिर दरवाज़ा खोला, ये सब अल्लाह ही कर रहा है। तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो अल्लाह कैसे कर रहा है। तो वो हाँ अल्लाह जी, कर रहा है तो साबित करें कि भी कर रहा है, वो बात खत्म हाँ हो जी, जाएगी। हाँ जी, चले अब यक ना दो शुद्ध हो गए हैं।
दो मुलहिद इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, तो ये तो आप सवाल मैंने कर दिया है, जवाब पहले दे देंगे तो फिर मैं साबित में कर दूंगा। जो आपका जवाब होगा ना, एक मिनट सुन जवाब है कि लेना, हमें नहीं पता, मुझे आपको बोलने मालूम तो देना, कम से कम मुझे बोलने तो देना। आपने बोला इतनी देर बोला है, आप मुझे भी तो बोलने देना। कि या तो अगर आप दोनों ने बैठ के यहाँ गुफ्तगू करनी है तो बता दें, फिर हम चुप हो जाते हैं भाई। तो गुजारा ये है कि यक ना दो शुद्ध हो गया है, मुफ्ती एक तरफ है, मुसलमान एक तरफ है, दो मुल्हिद एक तरफ हो गए हैं। देखें सूरा अल हज है और आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह ने ये हमें तरीका बताया था। या अय्युहन्नास, तमाम लोगों को अल्लाह ने मुखातब किया है, यहाँ मुसलमानों को, काफरों को, मुल्हिदों को नहीं, सबको, सब बीच में आगे। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल अबसी, ऐ लोगो अगर तुम्हें क़यामत के दिन जीने में कुछ शक हो तो क्या करो, फ़इन्ना, गौर करो, किस चीज के ऊपर गौर करो, फ़इन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, तो गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफातिन, फिर नुतफे से, सुम्मा मिन अलकातिन, फिर अलका से, सुम्मा मिन मुदगातिन। अभी तो ये बातें तो मैंने आगे सारी करनी है, अभी तो इब्तदा पानी की फुटक से बात शुरू है, मिन नुतफा से मैंने बात शुरू की है। मैं कह भी रहा हूं कि हम कुरान को मानते हैं, कुरान के बिलीवर हैं, कुरान ने हमें एक दस्तूर और असूल बताया है, हम उस असूल के पाबंद हैं। मैं नुतफे से बात शुरू कर रहा हूं, मिन नुतफातिन सुम्मा मिन अलाकातिन, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, मिन मुदकातिन। एक मिनट भाई सुन ले, जरा सुन ले, बात को लिमिट करेंगे। कमाल हो गया जी। चौधरी भाई जब आप बोल रहे थे तो आपको हमने कहा है जी कि आप लिमिट करें ना करें। नहीं मुबशिर साहब मैं 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं बोला। और नहीं, आपके पास बातें ही नहीं है ना, तो बोलना क्या है आपने, या तो कोई हो ना आपके पास तो आप बोल लें। हमारे पास तो भाई बातें हैं, हमने तो फिर टाइम भी ज्यादा लेना है। आप तो टॉपिक आपके पास जब बोलने को कुछ है ही नहीं तो आपने बोलना क्या, टाइम भी तो थोड़ा ही लेना है ना। मुफ्ती साहब ऐसे करते हैं, अगर आप माइंड ना करें, मैंने आपको तो बात यह है कि इधर देखें, मिन मुदगातिन मुखल्लकातिन, इसके ऊपर बात में करनी है। अभी तो ये सारी चीजें हैं, ये एक आयत ही ले लें, सिर्फ एक आयत के अंदर इतने प्रोसेस हैं, पूरी हमारी कायनात सिमट के इसके अंदर आ गई है। भाई आयत आपने लेनी है, हमें आपने समझाना है। वो बताइए जरा कि हजारों जरसूमे थे, मर्द के हजारों थे औरत के, उनके अंदर से एक ही क्यों मिला, बकाया क्यों नहीं मिले? जवाब दे। एक मुफ्ती साहब यही ठीक तो है, आपने बताना है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। दूसरे जो दोस्त आए हैं सर, अगर माइंड ना करें, जो भी आपकी आईडी है, आप क्या आईडी यूज कर रहे हैं ताकि मैं उस आईडी से आपको पुकार सकूं? कौन से दोस्त? मुफ्ती साहब को तो मैं मुफ्ती साहब कहता हूं, लेकिन आपकी आईडी क्या नाम से पुकारूं आपको? टॉक मास्टर। मास्टर साहब, टॉक मास्टर। आई एम सॉरी, मुझे 2 दफा बोले, आप नहीं समझ आई। चले टॉक मास्टर, डॉट मास्टर, चले एनीवे, मास्टर साहब मैं कह लूंगा। ओके, सो मास्टर साहब, मुफ्ती साहब देखें, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं चूंकि लर्नर पोजीशन पे हूं अभी, वेरी बिगनिंग, तो मुझे फील हो रहा है कि मास्टर साहब मुझसे बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं, मेरी ये फीलिंग है। तो आप दोस्त कंटिन्यू करें, और आपने जो सवाल किया है कि वो सारे जरसूमे मिलने की बजाय एक क्यों मिलता है, जी मास्टर साहब आप 1 मिनट बात करें प्लीज। जी गो हेड। मास्टर साहब को बात करने से पहले अगर हम बीच में एक तीसरा बंदा डाल लें जो कि फैसला भी कर सके, तो डिबेट को मैनेज कर सके, अगर आप इजाजत दें तो राजा जवेद साहब को हम बीच में डाल लें, हमारे बुजुर्ग हैं। फैसला अवाम खुद कर रहेगी चौधरी साहब। अच्छा राजा जवेद साहब, आप डिबेट करवाएंगे? अगर मैं ही करवा लूं, मैं मैनेज करना है, तो मैं दोनों दोस्तों को रिक्वेस्ट कर दिया करूंगा कि आपकी बारी है, आपकी बारी है, मैं मैनेज कर रहा हूं। नहीं, वो भी है, और साथ ये भी बताएंगे ना राजा साहब के, जहां पर मैं जवाब नहीं दूंगा तो ये राजा साहब मुझे कहेंगे मुफ्ती साहब आपने इस चीज का जवाब कोई नहीं दिया, ये जवाब आपके ऊपर। आप अगर सालस बनाना चाहते हैं डन हो गया कि अगर हमारी तरफ से जवाब नहीं होगा मुकम्मल,
تو راجہ صاحب اس کی کریکشن کر دیں گے. کیوں راجہ صاحب آپ سن رہے ہیں کہ سو گئے ہیں؟ نہیں میں سن رہا ہوں گا. تو راجہ صاحب ذرا یہ آپ تھوڑا سا بیلنس کروائیں گے. جی میں راجہ صاحب مسلمان ہیں بھائی، میں نہیں مانتا ان کو سالس. یہ راجہ صاحب نہیں، ٹاک ماسٹر صاحب جو ہے یہ بڑے اچھے بندے ہیں، اور یہ بھی ایکس قادیانی ہیں، اور چودھری صاحب بھی. تو میں مطلب وہی نا ایکس قادیانی تو نو ملحد. میں ایکس نہیں ہوا ہوں راجہ بھائی، آپ نے تو کچھ سر اسٹیٹمنٹ مفتی صاحب ابھی ہمیں آپ مطلب یہ مفتی ایکس نہیں ہے، صاحب ابھی تک آپ مفتی قادیانی صاحب ہیں لیکن مفتی صاحب قادیانیت کے اندر رہتے ہوئے آپ ملحد ہو گئے. ٹھیک ہو ہاں گیا، جی اب مفتی سمجھ صاحب آئی نا اب میں جو بھی ہوں، جو بھی میں مفتی ہوں، صاحب مجھے نہ دیکھیں، میرا مفتی سوال کو صاحب دیکھیں، سر مفتی ایک میرے منٹ جی جواب کو ماسٹر دیکھیں. صاحب ماسٹر صاحب ایک منٹ. مفتی صاحب بات یہ ہے ہم یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں لرن کرنے کے لیے ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں علم. ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ میں کہوں کہ آپ اچھا نو بات یہ ہے کہ ملحد ہیں. ہاں دیکھیں تنقید نہیں. سورہ اگر آپ کے الحج پاس کی آیت ایویڈنس 5 ہے جب آیت نو پانچ کو نو آپ نے سورت پڑھنا حج بھائی، کی ہم آیت نے آپ نہیں دیکھنا. دے سکتے. مفتی صاحب سنیں تو آپ نے صحیح نا فرمایا جی، تھا وہ تو میرے لیے ہے نا، آپ کے لیے نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا آپ ہوں ہمیں کہ نہ میں تو بتائیں نا، آپ میں ہمیں اس کا آپ فہم نے اپنے طور پر بگننگ میں بتائیں. کہا تھا ماسٹر صاحب ایک منٹ. آپ نے بگننگ میں مفتی صاحب کہا تھا کہ میں لاجک دوں گا، میں کسی مذہب کی دلیل نہیں دوں گا. اب آپ آ گئے ہیں سورت کی ایک آیت پہ. خود ہاں جی اپنا جو معیار آپ نے شروع میں دیا اس کو چھوڑ کے آپ نے ایک ہولی بک کو پکڑ لیا. چودھری صاحب، آپ ایک نے ایک منٹ دلیل رکھیں دینی بس، ہے ایک جی. ایک منٹ رکھیں بس، آگے ہاں چلتے ہیں. آپ نے مفتی صاحب دلیل دینی ہے، نہ کہ قرآن یہاں رکھیں اور ہم قرآن کے اوپر بات کریں. یہ تو بات ہی نہیں ہے. آپ نے ہستی باری تعالیٰ کے لیے کوئی دلیل دینی ہے کہ میں یہ ہے جی ایویڈینس. تو وہ دوسرے دوست کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک منٹ بات کر لیں. تو اگر آپ نے مفتی صاحب زیادہ بولنا ہے تو 2 منٹ کر لیں. مفتی صاحب 2 منٹ کر لیا کریں گے، ماسٹر صاحب 1 منٹ بات کر لیں گے. اگر ان کی 2 منٹ میں سے پہلے مکمل ہو جائے تو آپ 1 منٹ کر لینا ماسٹر صاحب. مفتی صاحب ٹھیک 2 ہے. منٹ کر لیں، ان کے پاس زیادہ علم ہے. جی ہاں مفتی جی، صاحب آپ کی باری شروع ہوتی ہے. آپ نے دلیل دینی ہے، ایویڈینس دینا ہے، نہ کہ قرآن کو سامنے رکھنا ہے. آپ نے فرمایا تھا جو بندہ کسی مذہب کو نہیں مانتا جسٹ ملحد ہے، اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، پھر قرآن یا تورات یا انجیل نہیں ہوتی. جی مفتی صاحب آپ کی باری ہے 2 منٹ. جی میرا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تو میرا وہی سابقہ میں گفتگو کر چکا ہوں. جب مجھے اس کے جواب مل جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں آگے گفتگو بڑھاؤں گا. میرا ٹائم ختم ہوا، اب بولیے آپ. کیا ہو گیا؟ لیکن انسان تو ہے نا، انسان کے لیے ایک بات ایک لیے ہوتی ہے کافی، بس وہ بار بار تو بندروں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ بس میں نے بات کر دی ہوئی ہے، مجھے اس کا جواب مل جائے گا تو انشاءاللہ میں آگے بات چلاؤں گا. میرا ٹائم ختم ہوا، اب بات کریں. سر مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب نہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ طنز ہو سکتی ہے، نہ آپ کسی کو باندر کہہ سکتے ہیں. آپ عزت سے ان کو بلائیں گے، وہ عزت سے آپ کو بلائیں گے. یہی معیار ہوگا. ملحد تو باندر تھے نا، ملحد تو خود کہتے ہیں جی ہم پہلے باندر تھے بعد میں انسان بنے. دیکھیں نہیں وہ ایک نہ کریا نظریے کرو پہ بات تسی، ہے. نہ میری کریا بات کرو. سنیں. اسی بندہ مفتی بندہ جی ویکھ کے بول گل رہے ہیں. کرنے ہونے آپ اس طرح ہیں. مفتی کم از صاحب کم ملحد کو جو ہے نا نہیں چننا چاہیے باندر سے. ملحد تو کہتا ہے کہ وہ تو فخر سے کہتا ہے میں پہلے باندر تھا بعد میں انسان بنا ہوں. یہ ڈاکٹر مفتی صاحب کو صاحب لے لیں، سر صاحب یہ ڈاکٹر صاحب بات کو لے لیں. راجہ صاحب آپ بات کریں اس پہ 1 منٹ اگر بات کرنی ہے تو. نہیں، جی میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب نیچے بیٹھے ہیں، ان کو اوپر لے لیں. میرا خیال میں وہ سائنٹیفکلی بھی اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو مگر راجہ بھائی میں تو مبشر شاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پہ. مبشر شاہ صاحب مفتی ہیں، وہ نہیں کریں گے. راجہ صاحب بشر بھائی سے بات ہوگی. پھر مفتی میں نے ڈاکٹر صاحب کی آئی ڈی دیکھی تھی پہلے بھی.
تو میں نے جان بوجھ کے اگنور اس لیے کیا تھا کہ شاید وہ اس پہ بات نہ کرنا چاہیں. تو مبشر صاحب کرنا چاہتے ہیں تو ان سے پہلے بات ہوگی، لیکن یہ ہمارے محترم ہیں، لیکن نہ یہ تنقید کریں گے اس طرح کی تنزیہ، نہ وہ کریں گے، باندر وغیرہ نہیں کہیں گے. ہاں کسی تھیوری کی بات ہے تو وہ جائز ہے کہ بھئی ملحد یہ تھیوری پیش کرتے ہیں اور ہم یہ تھیوری پیش کرتے ہیں. باندر وغیرہ نہیں کہیں نہیں گے. چودھری بھائی، ملحد بھی نہیں. یہاں پر میں بات ان سے کر رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مبشر صاحب یا پہلے کی جنریشن جو ہے وہ کہیں بندر سے ہو کے آئی ہے. مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا. پھر مجھے یہ باندر کہتے رہے، مجھے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. آپ ایک ایک منٹ رکھ لیں بس. اب آپ نے شروع مفتی کریں. صاحب کا جو پہلا سوال ہے وہ ماسٹر صاحب ڈیٹیل سے سنا ہے؟ سن لیا ہے میں نے. اس کا آپ جواب شروع کریں تاکہ بات آگے چلے. جی آپ کی باری ہے. 2 منٹ، بے اوکے شک آپ 1 منٹ بول رہے ہیں یا 2 منٹ بول رہے ہیں. اوکے جی، اوکے، تھینک یو. اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ سوال ہمارا تھا جو کہ میرا تھا، یعنی جو چودھری صاحب نے شروع کیا تھا. سوال یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنٹ جو ہے وہ بتائیں، وہ ثابت کریں، کوئی دلیل دیں. لیکن اس کے جواب میں مبشر نے یہ بتایا، مبشر نے یہ کہا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی میرے سوال کا جواب پہلے دیں تو میں دے دیتا ہوں کہ مبشر صاحب، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ایک جرثومہ کیوں ملا اور باقی کے کیوں نہیں ملے. اب آپ بتائیں کہ وہ باقی کے کیوں نہیں ملے. مجھے تو نہیں پتا، بتائیں. جی میرا ٹائم ختم ہوا، آپ بولیں. جی مفتی اچھا صاحب. جی، اچھا جی، مجھے انہوں نے ٹائم دیا ہے تو پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ بندر کہا تھا میں نے، حالانکہ ان کو نہیں کہا تھا لیکن وہ اس کے اوپر بھی چڑھ گئے. حالانکہ آپ کو تو خوشی ہونا چاہیے، رقص کرنا چاہیے تھا. یہاں کیمرہ آن کر کے نا لڈیاں پنگڑے ڈالتے کہ واہ جی واہ ہمیں بندر کہہ دیا. کیونکہ آپ لوگوں کا تو فلسفہ یہ ہے کہ بھائی پہلے آپ بندر تھے، آپ کے باپ دادا، تو بعد میں ان کی اولادیں انسان پیدا ہو گئی ہیں. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ ٹینشن میں آ گئی ہیں. اب اس کے اوپر آپ نے پھر مجھے کہہ دیا جی میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ مفتی بشر کو کہ یہ باندر ہے، نہیں تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ بھی باندر ہے. ہماری کون تھی؟ ہماری تھیوری تو کوئی ہے ہی نہیں. ہے کوئی تھیوری تو لے کے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنے وقت کے اندر آپ سوائے گپوں کے کوئی اور کام نہیں ہوتا. اور جب ہماری باری آتی، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ بس نکل جاتے ہیں. اچھا، اگلی بات یہ تھی، میرا سوال ادھر ہی ہے، سوال نہیں میں نے ریپیٹ کرنا. سوال ریپیٹ انسانوں کے لیے کیا جاتا ہے، بندروں کے لیے نہیں. ہاں جی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سوال ہوتے ہی میرا رہنا ہے، سوال نہیں میں نے بدلنا. اپنے وقت پہ آپ جواب دیجیے گا مجھے تو پھر سوال کھا پی جانا ہے، مجھے پتا ہے. تو یہ ڈاکٹر ہولی سپیٹ صاحب آئے ہیں ہمارے محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی، ڈاکٹر صاحب سے پھر بات ہوگی. مفتی جی میں صاحب ٹائم اپنا چھوڑ رہا ہوں، مائک میوٹ کرنے لگا ہوں. دو جواب رل مل کے. ٹائم ہاں جی، ویسے بھی آپ 1 ہو گیا. منٹ 1 منٹ جی 1 منٹ. مفتی صاحب 1 منٹ کر لیں دے ماسٹر مجھے بات کرنے دیں. 1 منٹ سر 1 منٹ. مفتی صاحب، ماسٹر صاحب نے آپ کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک جرثومہ ملتا ہے، زیادہ نہیں ملتے. ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں کہ اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ جواب گول کر گئے ہیں. اب میری باری ہے، اب دوبارہ نہ وہ باری لے لیں. اچھا، میرا ٹائم شروع ہے چودھری بھائی. جی ہاں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی ہاں جی. ایک تو یہ ہے کہ میں نے مبشر کو یہ نہیں کہا کہ آپ باندر تھے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بات کو ویسے ہی چھوڑیں، سوال و نہیں جواب پہ چلتے ہیں. چودھری صاحب بعض دفعہ نا چھوڑنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ میں باندر کے ساتھ دوبارہ یعنی کویشچن دوبارہ بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. تو یہ ڈارون کے نظریے کو لے کے یہ بات کر رہے ہیں، یہ میرا نظریہ نہیں ہے. ہاں البتہ انسان پہلے اپنی حیوانی شکل میں تھا، اس کو تو میں مانتا ہوں اور میں ثابت بھی کروں گا. لیکن فی الحال تو یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کی ایگزسٹنس کی دلیل مبشر نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی ہے. کہ وہ جرثومہ جو ہے وہ کس نے ملایا، یہ میں نے نہیں بتانا ہے، یہ مبشر نے بتانا ہے. انہوں نے پیش کیا کہ یہ کس نے بنایا ہے. ان کا مطلب ہے کہ اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ کی ایگزسٹنس وہ بتائیں کہ اللہ نے یہ کیا ہے.
जो जरसूमा वाला है वो साबित करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं वो बंदर वाली बात ज़रा मुझे चुभ गई है चौधरी भाई, अब इतना भी बंदे को शरीफ नहीं होना चाहिए। हज़रत आदम नहीं नहीं, अलैहिस्सलाम आप मेरे लिए एक प्लीज मिनट एक छोड़े मिनट, हज़रत बात। आदम अलैहिस्सलाम की इतने दोस्त हज़रत सुन आदम रहे हैं। अलैहिस्सलाम की औलाद जो थी ना, उनमें लड़के और लड़कियां थी। ये बहन भाइयों की शादियों की इनके पूर्वज जो है ना वो बहन भाई की शादियां के हैं, हमारी नहीं है। तो इतना सा मैं सर कहूँगा। मास्टर साहब देखें, जो जाती थोड़ी बहुत ही गुस्से वाली बात है वो एक दोस्त, दोनों दोस्तों से रिक्वेस्ट है वो छोड़ दें, और मुबशर को मुबशर शाह साहब कहें प्लीज, क्योंकि वो हमारे लिए भी मोहतरम है। बात ये है ओके, मुबशर साहब वो कहते हैं, मास्टर साहब कह रहे हैं कि एक जरसूमा आप कहते हैं मिलता है, ज्यादा नहीं मिलते। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? खुदा का वजूद क्या साबित करना चाहते हैं? वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि ज्यादा क्यों नहीं मिलते। आप इसका जवाब दें कि ज्यादा इसलिए नहीं मिलते क्योंकि खुदा है या नहीं है, आपने बताना है अब जी। अच्छा, बात यह है कि चौधरी साहब मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ने भी कहा कि मैं मुल्हिद हूँ, ये टाक मास्टर साहब ने भी कहा कि मैं मुल्हिद हूँ, तो मैं दोनों से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप ये ना कहें जी वो टाक मास्टर ने ये बात कही है तो आप इसका नहीं, आप कहें मेरा ये सवाल है, आप कह सकती हैं, बखुशी कह सकती मेरी हैं। चले चले अरे चले मेरी बीच बात में ना सुन ले, बोले, मेरी गलत बात है। देखे बीच में ना बोले मेरी बात सुन ले। आप करते हैं तंजिया बात, मैं भाई। 200 देखे दफा डिबेट के मेरी अंदर बात सब कुछ सुन ले। चलता है, डिबेट आप जब करते होती है, हैं, मुकालमात आप जब होते हैं, करते उसमें हैं। हर चीज चलती है, हौसला सबर से फिर सुनते हैं। देखे मैं अपने वक्त के अंदर माइक म्यूट कर लिया करता हूँ, हमारे हौसले भी तो देखे ना। नहीं ये गलत बात है, जब कोई डिबेट के अंदर बड़ा कुछ होता है, गालियां तक चल जाती हैं यार। यहाँ तो हम तो गालियां भी नहीं दे रहे, बड़े सलीके से गुफ्तगू कर रहे हैं। कम अज कम सबर तहम्मुल से बात तो करें ना। रही बात बंदर की, लो जी वो डार्विन का कीधा तो वो मैं नहीं मानता, वो यही बात है। मुल्हिद किस चीज को मानता, किस चीज को है? मुल्हिद तो किसी को नहीं ना मानता। आज इस मुल्हिद का अकीदा कोई और होता है, कल कोई और हो जाता है, परसों कोई और, तो चौथ कोई और होता है। किसी एक अकीदे नजरिए के ऊपर मुल्हिद टिकता ही नहीं है। साइंस की थ्योरियां आप उठा के देख लें, कभी एक नहीं हो। कोई एक ऐसी चीज बता दे कि हमेशा से साइंस का एक कुलिया एक ही रहा है ही नहीं। हमेशा हर दिन उठ के एक नया अकीदा और नजरिया लेके आते हैं, ये एक नई थ्योरी लेके आते हैं, ये किसी चीज को मानते नहीं है। बंदर के ऊपर ये इतना टपे हैं, तड़फे हैं। कल तक तो इनके बाप दादा कहते थे हम बंदरों की औलाद हैं, तो अभी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। अच्छा, बंदर को छुपाने के लिए वो जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर बहन बेटी से ब्याह करते थे, तो ये क्या साबित हो गया है? बंदर साबित हो गया। चलो जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो खुश होना चाहिए कि मुल्हिद तो सारे ही अपनी बहन बाजियों और माओ के साथ वो गेम बजाते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो तुम्हें तो चिढ़ना तो नहीं नहीं यार, अपने वक्त जो मर्जी क्या जाए यार, की कर दोगे, टाइम टाइम हो हो गया। गया। हाँ ओके जी, मास्टर साहब देखें मेरी बात सुने, आप एक मिनट होल्ड करना। मुफ्ती साहब मैं तीसरी बार आपको पूछ रहा हूं, अगर आप फिर भी जवाब नहीं देना चाहते तो मेरी नजर में तो आप डन है। और अगर इन्होंने आप कोई मुझे जवाब ये अब तक बार दिया बार, ही नहीं। एक मिनट मास्टर साहब, अगर आप मुझे ये बार बार कहते हैं कि आपका भी सवाल है, आप मुल्हिद हैं, चले मुझे आप रिकॉर्ड कर लें 100 दफा, मैं खुद मुल्हिद हूं, फिर क्या होगा? फिर भी मुझे एक टाइम दे दें अपना 100 दफा रिकॉर्ड कर लें, मैं मुल्हिद हूं। कितनी बार मुझसे पूछना है आपने? चले, आपको मैंने बार बार मना किया तनज ना करें, क्यों तनज से बाज नहीं आते? उनका सवाल, उनका जवाब ये है मास्टर साहब का, एक जरसूमा मिलता है, सारे नहीं मिलते, मुझे नहीं पता। आपने ये मिसाल दी खुदा को साबित करने के लिए, आप बताएं कि एक इसलिए मिलता है कि वहां पे खुदा है, आप उसका जवाब दें अब। जी मुफ्ती साहब। जी, अब मेरा टाइम नहीं चौधरी नहीं, भाई, मुफ्ती मेरा साहब से टाइम। मुझे इस सवाल का जवाब पूछ लेने दे रहे, वो जवाब आया ही नहीं, तो आपने अगला जी सवाल क्या करना है? जी चौधरी साहब पहले तो मैं एक जरसूमा मिलता है, सारे नहीं मिलते। अब मुझे इसलिए बोलने कि तो क्यों- देना, अब नहीं, जब नहीं, मेरी मौका बात दिया तो सुन ले। फिर सवाल सुन समझ। ली है। मैं कहता हूँ इंसान के लिए एक बात काफी होती है यार। जी आपके पास 2 मिनट है।
मैं कोई मुल्ह तो नहीं हूँ, बंदर तो नहीं हूँ कि रिपीट करते रहे बातें। सर हद होगी। आप तंज करेंगे तो मैंने ओ आपको भाई ड्रॉप ठीक कर हो देना गया ना जी, चौधरी साहब बात आपने ठंडे दिल तंज ना की सुन। तो मैंने आपको ड्रॉप कर देना, मैं आपको कोई सीरियस गल नहीं बोलता कर हूँ। दियो, कोई गल नहीं, बात अगर करने आपने दे। दोबारा तंज की तो मैंने कर देना है। और मैं आपको सब सीरियस कह रहा डिबेटों हूँ। में चलता है, थोड़ा सुनते भी होते हैं, हद हो गई है, क्या हो गया दोबारा तंज ना करना, यार, जवाब ਤੁਸੀਂ देना। ਲਾ ਹੀ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਵੈਸੇ। हाँ छोड़ दें सुना- मुफ्ती साहब, इन दोनों को छोड़ें, आप लोग मुल्ह दे रहे हैं, तुम्हें मुबारक हो। अच्छा बात ये है, वो तो चले गए, मैं एक बताकर मुबशर शाह साहब वो भी चले गए। चलें ठीक है चौधरी भाई, बात ये है कि इनको अंदाज़ा हो गया था ये अंदाजा हो गया था, जवाब नहीं है हाँ, तो तंज जी, करते इनको हैं और बिल्कुल लड़ाई करके निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये असल हस्ती में बारी ताला का सबूत देने आए हैं। हाँ, और इन्होंने जो बातें की हैं उसमें एक भी बात ऐसी नहीं थी कि उसका सबूत देते हुए नजर आते। जी। तो ये इसी तरह के वो किसने बनाया, वो किसने बनाया, अच्छा वो किसने बनाया, तुम बताओ। तो ये है इनका ये होता है कि ये हमसे, हमारे मुंह से ये निकलवाएं कि खुदा नहीं है। मेरे मुंह से तो ये नहीं निकलवा सकते थे खैर से। और बात ये है, निकालें या ना निकालें, देखें मैं लाला आपको एक जावेद सीरियस भाई, बात बोलता हूँ, मैं एक कहता है मैं खुदा पे बिलीव नहीं करता, आप उसको कैसे समझाएंगे? इसलिए समझाएंगे कि आप बंदर कहते हो, आप ये कहते हो, आप वो कहते हो। मैं यही कह रहा हूँ कि शुरू में जो आपने कहा था कि भी मैं ये मुझसे सवाल लोग करते हैं, जाहिर है लोग भी करते हैं, तो मैं